So today we are going to discuss about the dimensional analysis. So what is the dimensional analysis? So dimensional analysis, it is a method by which we can convert a unit from one system to other system. There are two systems for the measurement, SI system and CGS system. जब एक यूनिट को CGS सिस्टम से SI सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता है, SI सिस्टम से हम लोग CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता है. सो दिस मेथड अप्लाई करके एक यूनिट को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता है. दैट मेथड इज कॉल्ड व्हाट? डायमेंशनल एनालिसिस. सो डायमेंशनल एनालिसिस ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड, ऑल्सो नोन एज यूनिट फैक्टर मेथड. So dimensional analysis is also known as factor level method or unit factor method. So अभी हम some commonly used conversion factor का बारे में डिस्कस करेगा, जिसको यूज करके you can easily convert a unit from one system to the another system. जैसे कि for length distance. तो एंगस्ट्रॉम, देयर आर सो मेनी यूनिट्स टू मेजर द लेंथ और डिस्टेंस, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, माइल. देयर आर सो मेनी यूनिट्स टू मेजर द लेंथ और डिस्टेंस. Similarly, angstrom also one of the unit for the measurement of length. So one angstrom is denoted by a to the power naught. 1 angstrom equal to how many? 10 to the power minus 10 meter. 1 inch equal to how many? 2.54 into 10 to the power minus 2 meter. 1 centimeter equal to how many? 10 to the power minus 2 meter. 1 centimeter equal to 10 to the power minus 2 meter. Therefore 1 meter equal to 10 to the power 2 centimeter. 10 to the power 2 मतलब 100 centimeter. 1 meter equal to 100 centimeter. If 1 meter equal to 100 centimeter, so 1 centimeter equal to 10 to the power minus 2 meter. Similarly, mile is one of the unit of distance or length. 1 mile equal to 1609.3 meter, equal to how many kilometer? 1.6 kilometer. That means 1 mile equal to 1.6 kilometer. Similarly, mass we can also measure in different unit. जैसे कि LB it is known as pound. So 1 pound equal to how many? 453.6 into 10 to the power minus 3 kilogram. 1 kilogram equal to 1000 gram. So 1 gram equal to 10 to the power minus 3 kilogram. So AMU यूनिट से एलिमेंट का एटॉमिक मास को मेजर किया जाता है. जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU. 12 का एटॉमिक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 AMU. सो एटॉमिक मास को AMU यूनिट में मेजर किया जाता है, लेकिन आजकल एटॉमिक मास को U से मेजर किया जाता है. U इंडिकेट्स यूनिफाइड मास. सो 1 AMU और 1 U सेम है. सो 1 AMU और 1 U इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम? 1.66053 into 10 to the power minus 27 kilogram. So similarly, volume also we can measure in different unit. जैसे कि 1 liter equal to 10 to the power 3 milliliter, मतलब 1000 milliliter, equal to 10 to the power 3 centimeter cube, equal to 10 to the power minus 3 meter cube, equal to how many? 1 decimeter cube. वॉल्यूम का यूनिट हम लोग पहले भी डिस्कस किया था. So 1 liter equal to 1 decimeter cube, 1 liter equal to 10 to the power minus 3 meter cube, 1 liter equal to 1000 centimeter cube, 1 liter equal to 1000 milliliter. Similarly, pressure, एक particular gas का pressure we can measure in different unit. Atmosphere, bar, pascal, millimeter mercury, centimeter mercury, torr. There are so many units to measure the pressure of a gaseous substance. So Pascal is the SI unit to measure the pressure. Pascal is the SI unit. So 1 atmosphere equal to how many Pascal? 1.0136 into
10 to the power 5 Pascal. Approximately 1 atmosphere equal to, we can write 10 to the power 5 Pascal. 1 atmosphere equal to 1 bar. Commonly लेकिन प्रेशर को मेजर किया जाता है either in atmosphere or bar. So atmosphere and bar are the common unit of pressure. So 1 atmosphere equal to 760 millimeter of mercury. 1 atmosphere equal to 76 centimeter of mercury. 1 atmosphere equal to 76 torr. So ये सब relation याद करना पड़ेगा to convert a unit from one system to the another system. Similarly, energy we can measure in different units. Energy and work दोनों का unit same है. Common unit of energy is calorie. 1 calorie equal to 4.184 joule. Joule is the SI unit of energy or work. Remember it. So 1 calorie equal to 4.184 joule. 1 calorie equal to 4.184 into 10 to the power minus 3 kilojoule. 1 kilojoule equal to 10 to the power 3 joule. So 1 calorie equal to 4.184 kilogram meter square per second equal to 4.184 Newton into meter. N represents here Newton. Arg is the Celsius unit of work or energy. So arg is the Celsius unit of work or energy. So 1 arg equal to how many joule? 10 to the power minus 7 joule equal to 10 to the power minus 10 kilojoule. So 1 arg equal to 10 to the power minus 7 joule होने से obviously 1 joule equal to कितना होगा? 10 to the power 7 arg होगा. So 1 joule equal to 10 to the power 7 arg. So 1 arg equal to 10 to the power minus 7 joule. So joule is the Celsius unit of work or energy, and joule is the SI unit of work and energy. So time similarly we can measure in different units: hour, days, minute, second. So there are different units to measure that time also. 1 hour equal to 60 minute. तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर सकता है. अगेन अनदर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 60 इंटू 60 3600 सेकेंड. तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड. सो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया. 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड हो गया. साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कैसे एक मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है. साइंटिफिक नोटेशन मतलब जब एक नंबर को n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n फॉर्म में कन्वर्ट करने से दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. सो हम लोग यहाँ ये नंबर को 3600 को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया? यहाँ से डेसिमल पॉइंट यहाँ कन्वर्ट कर दिया, शिफ्ट किया. सो 3.6 हो गया इंटू 10 टू पावर 3. 3 कहाँ से आया? क्योंकि 10 का एक्सपोनेंट क्यों 3 हुआ? क्योंकि डेसिमल पॉइंट 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किया. और 10 का एक्सपोनेंट क्यों पॉजिटिव हुआ? क्योंकि डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट में हम लोग शिफ्टिंग किया. सो नाउ लेट अस डिस्कस few examples for the conversion of an unit from one system to the another system. Suppose this is the first question, question number 1. जिस क्वेश्चन में हम लोग कन्वर्ट करना है 2.6 मिनट को सेकेंड में. दैट मीन्स 2.6 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है. सो हम लोगों को मालूम है देयर इज ए रिलेशन बिटवीन मिनट एंड सेकेंड. 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. सो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मतलब 1 यूनिट को अनदर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कन्वर्सन फैक्टर बनाना पड़ेगा. कन्वर्सन फैक्टर कहाँ से मिलेगा बनाया जाएगा? मिनट एंड सेकेंड का रिलेशन से. तो कन्वर्सन फैक्टर में बनाना है क्या करना है? 60 सेकेंड को 1 मिनट से डिवाइड कर देना है. 60 सेकेंड को 1 मिनट से डिवाइड करके कन्वर्सन फैक्टर बना दिया. तो कन्वर्सन फैक्टर में जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है वो ऊपर में रहेगा, जिससे कन्वर्ट करना है वो नीचे में रहेगा. जैसे कि मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सो इसीलिए मिनट नीचे में है, सेकेंड ऊपर में है. मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सो मिनट नीचे में है, सेकेंड ऊपर में रहेगा. सो दैट फैक्टर इज कॉल्ड कन्वर्सन फैक्टर. और कन्वर्सन फैक्टर रिलेशन से मिलेगा. सो मिनट एंड सेकेंड का बीच में दिस इज द रिलेशन. देयरफॉर कन्वर्सन फैक्टर इक्वल टू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट.
तो सेकेंड ऊपर में, मिनट नीचे में। क्यों सेकेंड ऊपर में है? क्योंकि मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सो अभी 2.6 मिनट को जब कन्वर्सन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा देन मिनट सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, 2.6 मिनट इक्वल टू देन हाउ मेनी सेकेंड, 2.6 मिनट इंटू कन्वर्सन फैक्टर, then 2.6 minute into conversion factor, this is the conversion, 60 second divided by 1 minute, 60 second divided by 1 minute। now minute cancel हो गया, फाइनली सेकेंड रह गया। तो 2.6 को 60 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 156 सेकेंड हो गया। दैट मीन्स 2.6 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड, 156 क्या हो गया, सेकेंड हो गया। लेट अस सॉल्व नाउ वन मोर क्वेश्चन। ए जग contains 2 liters of milk. So calculate the volume of the milk in meter cube. मतलब लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। मीटर क्यूब इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। So there is a relation between liter and meter cube. We know that 1 liter equal to 10 to the power minus 3 meter cube. So लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्सन फैक्टर बनेगा 10 to the power minus 3 meter cube डिवाइडेड बाय 1 लीटर। So 2 लीटर इक्वल टू 2 लीटर इंटू कन्वर्सन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, लीटर कैंसिल हो गया। सो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर क्यूब रह गया। सो 2 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन SI यूनिट। ये सभी को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 92 मिलियन माइल्स, मतलब माइल्स को हम लोग SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर है। 90 माइल्स पर आवर, तो 90 माइल्स पर आवर को SI यूनिट मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 5 फीट 4 इंचेस, फीट इंचेस आर द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस का SI यूनिट है मीटर। सो हम लोग 5 फीट 4 इंचेस को मीटर में कन्वर्ट करना है। So 0.74 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज एन यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो एंगस्ट्रॉम को हम लोग SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है। 140 पाउंड्स, पाउंड्स को LB सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो 140 पाउंड, पाउंड इज द यूनिट ऑफ वेट, मास। सो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, SI यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम इज द SI यूनिट ऑफ मास एंड वेट। So let us solve the first question. Question number 1 is 92 million miles. So 92 million miles equal to how many miles? 92 into 10 to the power 6 miles. मिलियन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 10 to the power 6। 1 मिलियन में 1 का पीछे में 6 zeros होता है। So 92 million miles equal to then how many miles? 92 into 10 to the power 6 miles. तो माइल्स को हम लोग अभी SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो माइल्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग माइल्स एंड मीटर का रिलेशन देना पड़ेगा। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माइल्स एंड मीटर? 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। 1 माइल इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर। देन 1 माइल इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर मीटर। सो किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1000 मीटर, 10 टू पावर 3 मीटर। सो 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होने से 1 माइल इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर हो गया। सो कन्वर्सन करना है माइल्स को मीटर में। सो कन्वर्सन फैक्टर हम लोग अभी बना लेना है। कैसे बनाएगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर को 1 माइल से डिवाइड करके कन्वर्सन फैक्टर बन गया। तो अभी कन्वर्सन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देने से, इनको मल्टीप्लाई कर देने से सो क्या हो जाएगा? ये माइल्स मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर 92 इंटू 10 टू पावर 6 माइल्स, तो ये 92 इंटू 10 टू पावर 6 माइल्स को कन्वर्सन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है। दिस इज द कन्वर्सन फैक्टर, मल्टीप्लाई कर दिया। देन माइल माइल कैंसिल हो जाएगा, तो माइल कैंसिल होकर अल्टीमेटली क्या रह जाएगा? मीटर रह जाएगा। मतलब माइल्स कौन सा यूनिट में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। तो कैलकुलेशन करने से फाइनली ये कितना आ जाएगा? 1.472 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर हो गया। सो माइल्स कौन सा यूनिट में कन्वर्ट हो गया? मीटर में कन्वर्ट हो गया।